Here is our presentation, sixth presentation on studies of chemical kinetics. We have already presented 5 videos relating to this topic, and now the topic today is factors affecting the rate of a chemical reaction. अब हम देखिए कुछ कारक होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनसे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया प्रभावित होती है और हमको इसको जानना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हमें उनको ठीक से अगर हम उसका एडजस्टमेंट करें, उनमें हम सुधार करें, उसमें हम उपचार करें, तो हम बड़ी आसानी से किसी भी अभिक्रिया की गति को घटा अथवा बढ़ा सकते हैं। These factors, if adjusted properly, affect the rate of the reaction. Of course, there are certain factors which is not in our control. So let us go through the factors affecting the rate of a reaction. And here it is. It is first, chemical nature of the reacting substance, physical state of the reactants, size and shape of the reacting particles, or state of subdivision, large lump versus many small particles, temperature of the reactants or reaction mixture, concentration of the reactant, and use of the catalyst. अब आप देखिए, इसको हम एक एक करके संक्षिप्त में टेकअप करेंगे और विशेष प्रकार से हम देखेंगे कि किन अभिक्रियाओं को, किन फैक्टर्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं जो कि रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता है और किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। अब आइए देखें केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इन आवर कंट्रोल। सपोज वी वांट टू रिएक्ट कार्बन विद ऑक्सीजन, वी हैव टू टेक कार्बन एंड ऑक्सीजन, नो ऑल्टरनेटिव. The chemical composition of the reaction or reactant is very essential, and that will undergo reaction. But हमने एक चीज जरूर देखा है कि अगर आयरन को रिएक्ट करना है ऑक्सीजन से या सोडियम को वायु में, हवा में छोड़ दिया जाए, तो हम देखते हैं आयरन वायु से या एयर से कम प्रभावित होता है, लगभग नहीं के बराबर प्रभावित होता है। लेकिन अगर हम सोडियम को छोड़ दें फॉर सम टाइम इन द एयर, इट गेट्स इमीडिएटली रिएक्ट एंड इज कन्वर्टेड टू ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड, व्हाटएवर मे बी सिचुएशन। नाउ इसी तरह से अगर हमें मालूम है दैट सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, a very quick reaction, but an electropositive element similar to sodium but different from sodium, and that is calcium. This is also electropositive. It reacts with water, but the reaction of calcium with water is not faster as compared to sodium. Sodium reacts faster than the reaction of calcium with water. So it is the nature of the reacting substance which is significant, that decides the rate of the reaction. It is not in our control, and we have to take up those reactants which are needed. Now, next is physical state of the reactant. We know that there are 3 physical states of a matter, and the reactants are taken or can be used in any one of the physical state, solid, liquid, and gas. Which will be more effective? It depends upon their interaction at the interface. होता क्या है, जब हम रिएक्टेंट के पार्टिकल्स को लेते हैं तो वो ऊपरी सतह पर दोनों रिएक्टेंट से 2 से अधिक रिएक्टेंट जो भी हम ले रहे हैं वो पहले ऊपरी सतह को प्रभावित करते हैं, और ऊपरी सतह जिसको कि हम इंटरफेस बोलते हैं, उस पर अभिक्रिया यदि दोनों के होमोजेनिटी है, फिजिकल स्टेट एक से है, तो बड़ी आसानी से अभिक्रिया होती है। लेकिन अगर अलग अलग है, particularly in solids, the reaction of solid and solid is not that fast as compared to those of the liquid and liquid.
liquid and liquid becomes homogeneous and reacts at a faster rate. That is why we take, at many cases, we use in reactants in the dissolved state so that they become homogeneous and react faster. गैसेस का रिएक्शंस भी उतना फास्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी it is the physical state of the reactants which is important. Next, size and shape of the reactant particle are state of subdivision. This is equally important. जो आप reacting particles ले रहे हैं उसका आकार क्या है, उनके सरफेस एरिया कितना है, और अगर आपको हम एक बहुत अच्छा उदाहरण दें, अगर हमें मालूम है that iron reacts with HCl to form ferric chloride and hydrogen. Suppose you take iron nails and dip it in hydrogen chloride, dilute hydrochloric acid. We get hydrogen, but since the nails have greater surface area, the reaction is very slow. और उसी के बजाय अगर हम आयरन पाउडर ले लें और उसी तरह के डाइल्यूट HCl में डालें, सेम कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट HCl, we find the reaction becomes faster, very fast. So it is the state of subdivision which is also important. अगर बड़ा टुकड़ा ले लेंगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का हम बड़ा सा टुकड़ा ले लिया, लार्ज लंप इसको हम बोलते हैं, और उसको हम HCl से डालेंगे, रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन स्लो होगा. लेकिन उसी को अगर हम बारीक पीस लें, पाउडर कर लें, the reaction will be very fast. And because the small particles, though they are very small, but the surface area which is being provided to HCl is more in terms of small particles. A number of particles are there. Temperature of the reactant. Reactant का temperature भी बड़ा important होता है. Normally हम देखते हैं when there is an increase in temperature, the reaction becomes faster. अब इसका तो एक बहुत अच्छा सा सीधा सा उदाहरण हम दें कि जैसे हम लोग कॉमनली यूज कहते हैं फूड मटेरियल्स, वेजिटेबल्स हैं या इस तरह के कोई भी जो खाने पीने की सामग्री है, उसको अगर हम किचन में खुला छोड़ दें तो क्या होगा, वो जल्दी सड़ जाएगा, उसका स्पॉइलेज ज्यादा होगा, वो जल्दी खराब होगा. एंड देयरफॉर वी यूज उसी चीज को अगर हम फ्रिज में डाल दें, दैट मीन्स एट लोअर टेम्परेचर, फ्रिज में रख दें तो रिएक्ट तो उतना ज्यादा वो खराब नहीं होता. एंड दिस स्पॉइलेज ऑफ द फूड आर्टिकल्स इज अगेन ए केमिकल रिएक्शन. और इस तरह से तमाम अभिक्रियाओं को हम देखते हैं कि टेम्परेचर से ज्यादा प्रभावित होती है. नॉर्मली क्या होता है, अगर हम 10 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस, तो रिएक्शन रेट दुगना हो जाता है, इट बिकम्स डबल. द रिएक्शन रेट डबल्स with increase in temperature to a degree of 10 degrees Celsius. And concentration of the reactant is also a very important point. Now, we know that the rate of a reaction is directly proportional to the concentration of the reactant. Reaction का सांद्रण क्या है? Normally, as we know, it is represented in moles per liter. So, concentration और उसको हम कभी कभी एक्टिव मास भी बोल देते हैं, that is directly proportional to the rate of the reaction. Rate of a reaction is directly proportional to the concentration. It's very important. And finally, हम क्या करते हैं, कभी कभी कोई अभिक्रिया बहुत स्लो होती है तो हम उसमें एक ऐसा पदार्थ मिला देते हैं जिनको हम कैटलिस्ट कर बोलते हैं. This catalyst increases or decreases the rate of the reaction without apparently taking part with the reacting material or even the products. So, catalyst का भी यूज हम कर सकते हैं. तो देखिए किससे हम प्रभावित कर सकते हैं कभी किसी भी अभिक्रिया को, फिजिकल स्टेट से, साइज एंड शेप से, टेम्परेचर को घटाकर या बढ़ाकर, या कंसेंट्रेशन को भी एडजस्ट करके, और कैटलिस्ट को यूज के. इट इज ओनली द फर्स्ट फैक्टर, दैट इज केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, जो कि हम नहीं बदल सकते, लेकिन किसी भी अभिक्रिया को इन फैक्टर्स के द्वारा एडजस्टमेंट से हम किसी भी अभिक्रिया की गति को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या अपने अनुसार जो आवश्यक है
उसकी गति को एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए, ये तो हमने सारा विवरण बता दिया, और फॉर योर अंडरस्टैंडिंग I'll provide you certain important points here which will go through it, and that will help you a lot. Chemical nature of the reacting substance. Next is, of course, physical state of the reactants. All details are given here. I expect you to go through it. अब वो आयरन और HCl वाला जो हमने एग्जाम्पल दिया, इट इज ऑल गिवन हियर. नेल्स में रखते हैं तो रिएक्शन स्लो होता है, पाउडर लेते हैं तो रिएक्शन फास्ट होता है. एंड अगेन, if you take another factor, the other factor is temperature of the reaction mixture. और जैसा कि हम बता चुके हैं, for each 10 degrees rise in temperature, the reaction rate is doubled, and faster rate at a higher temperature. ये तो होता ही है. और फूड आइटम्स का जो एग्जाम्पल दिया था वो हमने यहाँ आपके लिए फिर प्रस्तुत कर दिया है. कृपया इसको ध्यान से पढ़ें, जिससे कि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए रिएक्शन काइनेटिक्स की, और साथ साथ इन फैक्टर्स की, जिससे कि हम किसी भी अभिक्रिया को एडजस्ट कर सकते हैं. And then concentration of the reactant increase when the concentration of one or more of the reactant increases. Rate usually increases when the concentration of one or more of the reactant increases. And finally, the presence of a catalyst. So, ये catalyst क्या है और किस प्रकार से प्रभावित होता है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, और इसके डिटेल्स तो हम अलग से अलग टॉपिक में पढ़ेंगे. और साथ ही साथ अब आप ध्यान दें, हम आपसे सुझाव देंगे कि हमारे पहले के 5 काइनेटिक्स के रिलेटेड वीडियोस को जरूर देखें, जिससे कि ये कंटिन्यूटी बनी रहे और इसको हम सही प्रकार से समझ करके प्रॉपर कंसेप्ट्स डेवलप कर सकें. ओके, थैंक यू वेरी मच. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. और इसके बाद हमारा दूसरा एक और वीडियो केमिकल काइनेटिक्स पर आएगा, एंड दैट विल बी रिलेटेड टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक which is known as activation energy and collision theory. Thank you very much again.